Good morning, friends, and welcome to Aishar Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive series featuring women transporters who have broken stereotypes in the industry and have made a mark for themselves. Today's episode features yet another housewife turned transporter who has created a mark for herself in the industry. She is part of a legacy, a company that has been around for a long time and is yet another offshoot of the famous TCI. We have seen quite a few companies where women are just names in the board of directors for taxation purposes. However, this woman is not just a designation. Although her designation may read as Director and Business Development Manager, but she is fulfilling the tasks that her designation reads out and more. Trans India is immensely proud to feature in Aishar Presents Nai Soch Nai Raste Barkha Agarwal from Indore, who hails from Jet Trade and Logistics, which is a sister concern of Jet Road Lines, a well-known name in the industry for over 35 years. Barkha joined the family business 8 years after marriage, and since then, she has been very active in the business. In fact, besides being an avid reader, Barkha is also an enthusiastic writer who not only writes articles but also dashes off letters to government officials on issues related to the trade. So here's our interaction with Barkha in Aishar Presents Nai Soch Nai Raste, a Trans India exclusive, but after this very short break. और क्या हुआ? आँख के मारे बैटरी लो है, विटामिन की कमी है, क्रूड ही ले टाइट कर दूँ। अबे जल क्यों नहीं रही? सर्विस करवानी है तो माई आइशर ऐप से बुक हो जाएगी, अभी आके ठीक कर देंगे। ले बुक हो गया। हेलो, वो कहाँ गई? माई आइशर ऐप के साथ घर बैठे सर्विस बुक करो और करो लाइव ट्रैकिंग भी। आइला Welcome back to Aishar Presents Nai Soch Nai Raste, a Trans India exclusive. We will be talking today to Barkha Agarwal, Director and Business Development Manager at Jet Trade and Logistics. So Barkha, to start with, tell us a little bit about your company. Okay, so my company name right now is Jet Trade and Logistics, but our journey started with Jet Road Lines. So Jet Road Lines started its journey with the market of इंदौर से कलकत्ता रीजन के लिए. It was known, हम लोग तब पार्ट लोड फुल ट्रक लोड करते थे and we are a renowned name. Even today लोग हमें कलकत्ता लाइन वाले से जाना जाता था. तो जब हमने स्टार्ट करी थी like आज 35-40 years back, तो पार्ट लोड फुल ट्रक का बहुत लोड जाता था. But gradually we had our own trucks also. We had 360 trucks till then. Okay. बट ग्रेजुअली भी सॉ कि डे बाय डे पहले कंपटीशन बहुत इंक्रीज होता जा रहा था इस सेगमेंट में, आइशर सेगमेंट में, कंटेनर सेगमेंट में. एंड देन 20 इयर्स बैक एक पीबी स्टील लॉयड कंपनी करके पीतमपुर में आई थी, जो फर्स्ट कंपनी थी जिसको ट्रेलर की रिक्वायरमेंट होती थी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए. प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स 20 इयर्स नो वन न्यू इट एंड नो वन एक्सेप्टेड इट सो मच. बट नाउ इफ यू विल सी कि देयर आर hundreds of companies
सो ग्रेजुअली वी शिफ्टेड आवर फोकस टू ट्रेलर्स। जब हमने देखा कि यहाँ बहुत कंपटीशन बन रहा है, जरा लाइक अगर 100 ट्रांसपोर्टर्स है तो 100 ट्रांसपोर्टर्स में एटलीस्ट 70 आर डूइंग ट्रक्स एंड कंटेनर्स, Right. so to come out of that competition, we diverted whole our attention to trailers and the ODC consignments. Okay. Because see, having experience of 40 years gives us कि हम माल करके पता कर सकते हैं कि ये माल कौन सी गाड़ी में जाएगा। आयशर के लिए, कंटेनर के लिए इसको 19 फीट लगेगी, 22 फीट लगेगी, इस एरिया में चोरी होती है, ये माल हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इवन फॉर दैट 20 ईयर्स से हम ट्रेलर्स का काम कर रहे हैं, तो बेल्टिंग किस माल के लिए कैसी होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसे राइट नाउ वी डिड एन ओडीसी कंसाइनमेंट इन द रेनी सीजन, एरिया आधा कच्चा था, तो उसको पहाड़ पे चढ़ाने के लिए पीछे से आपको हाइड्रा के साथ कैसे सपोर्ट देके उस ट्रेलर को लेना है। टायर्स फट रहे थे मतलब लिटरली, बट आवर ड्राइवर्स हैड दैट, आवर टीम हैड एक्सपीरियंस कि उसको कैसे चढ़ाएंगे। दे हैड दैट कि बीच में इतनी सारी, किसी का पाइप फटता है, किसी के वायर्स ऊपर करने, बट दे हैड दैट एक्सपीरियंस। तो चीज़ें इसीलिए हमने इसमें मूव हुआ कि इतने साल का एक्सपीरियंस, और हमें मज़ा भी वही कंसाइनमेंट में आता है। हमें नॉर्मल लोड ले जाने में मज़ा भी नहीं आता। सी, चैलेंजिंग टास्क से हमारी टीम का भी बहुत स्टीम बूस्ट होता है। जब वो एक एक कोर्स करके आते हैं ना, उनमें वाली एनर्जी आ जाती है, अरे ये चीज़ करनी है, एंड देन दे गो, रात भर सब जगते हैं, ड्राइवर्स भी जगते हैं, अरे भैया अभी नहीं खाएंगे, फिर सुबह 4 बजे चलो अपन इसको ही करते हैं। But anyway, ODC is very challenging, right? In terms of permissions बहुत सारे चाहिए, पेपर ओडीसी दो टाइप के होते हैं। देखिए, एक ओडीसी होते हैं जो हम 40 फीट और 50 फीट ट्रेलर्स में लेके जा सकते हैं, और एक ओडीसी होते हैं जो पुलर ट्रक में लेके जाते हैं, जिसमें आप, सो वी डोंट डू पुलर ट्रक वाला, उसका कंसाइनमेंट का लोड इतना है भी नहीं हमारे एमपी मार्केट में। वो चीज़ ज़्यादातर होती है आपके पुणे मुंबई मार्केट में। करेक्ट। सो व्हाट वी डू इज 40 फीट और 50 फीट में जो ट्रेलर्स लोड आते हैं, जैसे दो टाइप की चीज़ होती है सर। क्रेन है, क्रेन 110 फीट लंबी होती है, पर उसका वेट होता है 30 से 40 टन के बीच में, कभी 25 टन से भी, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। सो दैट वी कैन डू इट। 110 फीट लंबा रख के उसको कैसे लेके आना है, वी डू दैट। पुलर ट्रक्स वाला वी डोंट डू दिस। बट इसमें भी जैसे कंसाइनमेंट का लेंथ ज़्यादा है, डू यू नीड सेपरेट परमिशंस फॉर दिस? सर, लोकल डिलीवरीज ये ज़्यादा हैं, जो हमारी जैसे क्रेन वाले हैं, तो क्रेन सावेर से पीतमपुर जा रही है 100 किलोमीटर, सावेर से भोपाल जा रही है, या जैसे हमने जश इंजीनियरिंग के ओडीसी कंसाइनमेंट, तो विद इन जो चीज़ है ना कि 100-200 किलोमीटर के रेंज में ज़्यादातर हो रही है। सो उसके लिए जब विद इन एमपी बॉर्डर होता है ना, तो बहुत ज़्यादा परमिशन की इसमें नहीं रहती। जब बॉर्डर क्रॉस होते हैं ओडीसी कंसाइनमेंट में, तब परमिशन बहुत ज़्यादा, पर इसमें सपोर्ट बहुत लगता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सपोर्ट लगता है। अगर कोई, आपको ये चीज़ देखना पड़ता है कि कोई रेलवे आ रहा है, तो उसमें अगर हाइट ज़्यादा है तो वो चीज़ कैसे निकलेगी, तो आप कैसा रूट लो उसके लिए, तो पहले रूट सर्वे करना होता है। आपको रूट सर्वे डेफिनेटली करना पड़ता है। सर, कच्चा रास्ता है, रास्ते में किसका चीज़ आ रही है, किसी का खेत आ रहा है, तो किसका खेत आ रहा है, उसमें रास्ता बना हुआ है कि नहीं। इवन बहुत सारी चीज़ होती है सर, आप मानेंगे नहीं। जैसे अगर पीछे लोड दिया हुआ है, तो क्या होता है, गाड़ी ट्रिप मारती है, ऐसे लोड आधा निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो आपको पत्थर रख के उसको बीच में जो स्पेस है उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। फिर कच्चा रास्ता आ गया एकदम से, तो उसके लिए आपको अलग चीज़ उन लोगों को करनी पड़ती है। तो वो लोग, ऑपरेशन टीम इज वेरी गुड इन दैट, तो वो उस बेसिस पे पूरा सिलेक्ट करके कि ये इस टाइम पे ये ऐसा डिसीजन लेके देन दे गो इन देयर। सो एवरी ट्रांजैक्शन इज अ डिफरेंट चैलेंज इन इट्स ओन। इज अ डिफरेंट चैलेंज, बट दे एंजॉय अ लॉट, बिकॉज जो हैप्पीनेस मिलती है ना सर उसको, कि ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ, एंड देन दे से भाभी आज तक तो मतलब हमारा कोई कंसाइनमेंट फेल ही नहीं हुआ है, एंड यू नो द कॉन्फिडेंस, द हैप्पीनेस व्हिच दे हैव। So recently what happened is Dash Engineering is a company in Savage, जिसके ओडीसी कंसाइनमेंट्स इन्होंने, जैसे पहला टाइम हुआ तो 2 दिन लगे, सेकंड कंसाइनमेंट हुआ तो 24 आवर्स ही लगे इनको, एंड देन व्हेन दे वेंट, तो जश इंजीनियरिंग की टीम ने उनके लिए उठ के क्लैप किया कि यू नो दे डिड इट सो परफेक्टली, सो दे फेल्ट सो गुड। तो एक एज मिला सर उनको उस चीज़ के लिए, तो दैट्स व्हाई वी लाइक इट, क्योंकि इससे सर एक एज बढ़ता है हमारा, और हम कर सकते हैं ना, तो दैट्स व्हाई वी वांट कि हम कर सकते हैं, तो हम यही चीज़ ज़्यादा करें जिसमें लोग है ना प्रॉब्लम फेस करते हैं। पर बरका, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट एमपी नाउ, एमपी में भी हाल ही में चेक पोस्ट हटाने का एक अनाउंसमेंट हुआ था। यस, हैज दैट एक्चुअली हैपेंड ऑन ग्राउंड? सर, टिल डेट तो अभी चल रहा है, कितने दिन तक चलेगा आई डोंट नो, बट हाँ हुआ है। एंड सर हैट्स ऑफ, मतलब हम जानते हैं कि AIMTC वगैरह हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है। व्हेन दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग इट, गवर्नमेंट चेंज हो गई, मतलब हमारा मिनिस्टर चेंज हो गए थे, अगेन द स्टोरी फ्रॉम जीरो। मतलब लोगों को कितना इट टेक्स एफर्ट्स की पूरा उससे मिल के सबको, बिकॉज सर अरेंजिंग एवरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हेड मीटिंग इन बेंगलोर, भोपाल, अगेन कॉलिंग एवरीवन,
सबको मिला के करना. एंड देन इट वाज सेड कि एक बार बोल दिया था दिसंबर में, फिर दिसंबर में नहीं हुआ तो उन्होंने उसको ट्रांसफर करा, उतने में ट्रांसफर करा तो उतने चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, एंड देन ही फाइनली डिड इट. सो इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड वी आर, मतलब आई एम श्योर कि एवरी ट्रांसपोर्टर एंड एवरी ड्राइवर विल बी थैंकफुल टू AIMTC ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग इट. Tell me, how did you join the transport business? Because initially तो आप थे नहीं इसमें. How did it all start? इनिशियली नहीं थी सर, और ट्रांसपोर्ट से बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया था. सो व्हाट हैपेंड वाज, ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज अ पैटर्नल बिजनेस. Right. माय हस्बैंड ऑलवेज हैज एन अर्ज कि यार मैंने मेरे उस पे क्या किया, यू नो समथिंग डिफरेंट जो होता है उसको ट्राई करने के लिए. तो ही स्टार्टेड विद कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड मदर डेयरी की फ्रेंचाइजीज जो एमपी में फर्स्ट टाइम आई. सो दीज थिंग्स रिक्वायर लॉट ऑफ अकाउंटिंग, बहुत माइनर अकाउंटिंग्स एंड ऑल होते हैं. So for this I joined and I always had the urge to do business. I was very clear even when I got married. I was very clear कि भाई मैं काम करूँगी. But it so happened कि my mother-in-law was also working. My father-in-law, my husband used to go at 9, come at 9. So दादी, I had दादी. So दादी was alone. I got pregnant. उस चीज़ से मैं घर पे रही. But I kept doing course. कभी टैली का कोर्स कर दिया, कभी 1.5 साल का स्टॉक मार्केट का कोर्स कर दिया. I was always on the verge कि नहीं, I have to do something. सो जब मेरा बेटा प्ले स्कूल जाने लगा, सो आई स्टार्टेड विद द अकाउंट्स वर्क देन बिकॉज उसकी नीड थी. बट देन 8 months में बिकॉज आई हैव बीन इन अकाउंट्स बनिया खूना, वो समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है. बिकॉज सी मदर डेयरी वगैरह की आइसक्रीम वगैरह थी, दूध वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बहुत सीजनल बिजनेस था. 2-3 months है, मतलब अब तो वो होता है ना कि गर्मी में भी बारिश हो जाती है, पीपल आर लिटिल कि वो आइसक्रीम से लोगों का गला खराब होता है. वो तो 2 months के बिजनेस के लिए हमें 12 month का स्टाफ, इतने सारे आपके फ्रीजर्स, ये वो सब लॉस हो रहा था. एंड बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस चीज एडवर्टाइजिंग के लिए. बिकॉज वी ब्रॉट मदर डेयरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एमपी, सो पीपल डिडंट न्यू दैट. एंड मदर डेयरी की आइसक्रीम इज एनी डे 1.5 times कॉस्टलियर देन द आइसक्रीम्स व्हिच आर लोकली फेमस इन एमपी. सो हर जगह हमें वो, सो हमने दोनों बंद कर दिया था विद इन 1.5 years. अब थिंग स्टार्टेड सर. ट्रांसपोर्ट में सी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आऊँगी. अकाउंट्स वर्क इतना था नहीं कि मैं अकाउंट्स वर्क के लिए वहाँ पे बैठूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. सो नाउ एंड आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय सेकंड किड आल्सो देन. सो आई डिलीवर्ड हर, देन आई वाज ऑन द जर्नी कि भाई अब क्या करना है. ट्रांसपोर्ट में सोच ही नहीं रहे थे सर, वो ऑप्शन ही नहीं था. मतलब माइंड में कि साला ट्रांसपोर्ट भी करूँगी, मतलब मैं क्या करूँ. आई लेड हैंड्स ऑन एवरीथिंग, बिलीव मी. मतलब माय ब्रदर्स यूज्ड टू डू सिल्वर का ट्रेडिंग का. चल घर पे बैठ के, बिकॉज वो फेस था, मैं जब जापे से उठी थी, चल यही ट्राई करते हैं. वो समझ में नहीं आया बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन द वर्क जिसपे दिमाग का काम लगे. वेरी मतलब ब्रेन लगना चाहिए मेरा, मुझे मजा तब आता है. इट इज ऑल अबाउट सैटिस्फैक्शन व्हिच आई डू वर्क. सो इट इज नॉट अबाउट द मनी एनी विच वे, वेयर आई हैव टू शो कि मैं अर्न करूँ. नो, इट इज नॉट अ रीजन. आई नो कि मेरे में क्या पॉजिटिविटी है, क्या कैपेबिलिटी है, मुझे उसको यूज करना था. सो फिर सोचा कि चल अपना बिजनेस सेट करते हैं. स्टार्टेड माई जर्नी सर. बहुत सारे बिजनेस में मैंने वर्क किया था. किड्स ब्रांड लेके आएंगे यूजी का, बिकॉज देयर इज नो ब्रांडेड ब्रांड. एंड जो आइडियाज़ मैंने लेके आई थी, फिर फाइनली मतलब मैंने बहुत 4-5-6 महीने रिसर्च करके एक उस पर आया था कि किड्स का फ्रॉम 5 years to 12 years का एक नॉर्मल यूसेज ब्रांड नहीं है. कॉस्मेटिक ब्रांड्स, जो लोशंस वगैरह, इधर हम लोग न्यू बॉर्न लेते हैं या फिर एल्डर्स का लगाते हैं. सो लेट्स गो इन दिस. सो फिर मैंने उस पर वर्क करा, पूरे उसके फॉर्मूला इस पे कि वो सल्फेट फ्री हो, ये हो, देखो. एंड आई वाज ऑलमोस्ट, मतलब सर मेरा रॉ मटेरियल आ गया था. मैंने एक के साथ पार्टनरशिप कर दी थी. वो ऑलरेडी हैड 30 ब्रांड्स, सो ही हैड ऑलरेडी द एक्सपीरियंस की कैसे लाइन में लेके आते हैं. ही हैड दैट चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल, जिससे इमीडिएटली वो चीज़ क्लिक हो सकती थी. बट व्हाट हैपेंड इन उन 2 साल में, आई वाज जीरो. मेरी सोशल लाइफ जीरो थी. आई हैड 2 kids जिसको बार बार फीड कराना है, एक को पढ़ाना है बिकॉज उसका बेसिक ईयर था. 0/0. सो यार मेरे को माइंड में सोचा था, वाई एम आई डूइंग दिस. वाई, मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ, किसको क्या दिखाना है, मतलब मुझे वर्ल्ड को क्या दिखाना है भैया, क्यों करना है तुझे ये. तो फिर मेरे को लगा यार नहीं, मतलब आई एम मूविंग ऑन द रॉन्ग पाथ. मुझे किसी को कुछ दिखाना तो है ही नहीं. तो वाई एम आई पुटिंग, मैं अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारी हूँ. वाई एम आई डूइंग इट सोशल लाइफ से. आई एम इन अ बिजनेस फैमिली वेयर मुझे लोकल रिश्ते भी निभाने हैं, मुझे मेरी फ्रेंडशिप भी चाहिए, मुझे बच्चों. सो वाई एंड देन से मैंने एक ना सेमिनार हुआ था जहाँ पे प्रोफेसर आए थे एक मुंबई से, जिन्होंने फैमिली बिजनेस पे पूरा वो लिया था. एंड उस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स ये था कि भाई फैमिली बिजनेस में स्टार्ट करो. तुम्हें कोई बोलता है ना 10 साल पुरानी वसूली लेके आओ, उससे स्टार्ट करो चाहे, पर काम स्टार्ट करो. एक चीज़ करोगे तो दूसरी चीज़ थोड़ी सी और जिम्मेदारी वाला काम मिलेगा.
और इस प्रोसेस में क्या होगा, आप एक दिन जहाँ पहुंचना चाहते हो ना आपके बिजनेस में, आप वहां पहुंचोगे, और साथ में क्या होगा, जो आपकी टीम ने आपको धीरे धीरे आप उनका रिस्पेक्ट अर्न करोगे। एंड इट हैड, सर कंफ्यूज तो थी, क्लिक कर दिया भाई अब तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे, बंद कल से टोटल ताला स्वेर। मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा भाई तू कर जो करना है, ये तेरी, अपन तो फैमिली बिजनेस में जाएंगे। मैंने रोमित को बोल दिया भाई अपन को तो बिजनेस करना है और अपन जा रहे हैं। ओके, अब स्टार्ट क्या हुआ सर, 2 साल जो मेहनत करी थी ना, आइडिया सोचे थे कि मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करूँगी, एडवर्टाइजिंग कैसे करूँगी, ये चीज़ कैसे करूँगी, उसने इतना एक्सपीरियंस दिया, बिलीव मी, अपने बिजनेस को सेट करना इज़ लाइक ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टास्क, मतलब डिफरेंट एनर्जी। बोलते हैं एक पहली जनरेशन को सेट करने में टाइम लग जाता है, दूसरी जनरेशन उसको बढ़ाती है, इट टेक्स दैट मच ऑफ एफर्ट्स। तो सिर्फ 2 साल में सर इतना कुछ सोचा था और इतना कुछ समझा था। तो क्या हुआ, जब ट्रांसपोर्ट में आई ना तो किसी से पूछना नहीं पड़ा कि क्या करा, मैंने सबसे पहले मार्केटिंग वाली चीज़ ही उठाई थी वहाँ पे। कि मैं अपनी all the learnings from there you actually got it here. एग्जैक्टली, एंड व्हाट हैपेंड वाज, जब मैंने वो चीज़ इम्प्लाई करना स्टार्ट करा तो वी स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स वेरी क्विकली। Lovely. सो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया मेरा भी, और शायद जिन्होंने मुझे रोका नहीं, वो चाहे मम्मी हो, पापा हो, रोमित हो, कोई भी हो सकता है। Family support is important. बोला किसी ने भी नहीं, सी, बट सब लोग स्केप्टिकल तो होंगे ही होंगे। एंड बिलीव मी, जब मैं ट्रांसपोर्ट में थी मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे वुमेन्स होती नहीं है, ये नहीं होती। तो जब सुना वुमेन्स नहीं है, अच्छा ऐसा भी है कि वुमेन्स नहीं है, मतलब वो अलग कंसेप्ट है, अच्छा, क्योंकि कभी लगा ही नहीं वो वाली चीज़। एंड फिर सर मजा आता गया, फिर पता चला कि डिजिटाइजेशन होना चाहिए। So what did you start with? I mean, the first task क्या लिया आपने? ठीक है, फर्स्ट टास्क मैंने लिया कि नई कंपनीज को ढूंढना है और अपने क्लाइंट्स खुद बनाना है भैया। सर देखो 50 साल की गुडविल तो थी, क्लाइंट्स लेके आना वाज माय काम। तो मैंने क्या किया, सारे डिजिटल से लिस्ट निकालना, कौन सी कंपनी मेरे लायक है, कॉलिंग्स करना जो होते हैं, आई डिड इट माई सेल्फ। मैं रात भर सर कम से कम 200 कंपनीज का डाटा निकालती थी, मेल आईडीज निकालती थी, कॉन्टैक्ट करती थी, नेक्स्ट डे पूरे दिन भर उनको कॉल करती थी। उसमें से कम 20 लीड तो आती थी सर, 200 कंपनियों को कॉल करती हूँ तो कम से कम 20 लोग तो रेट मांगते थे। उस 20 में से कम 10 को तो जमती थी हमारी रेट। तो कुछ ऐसे नए क्लाइंट्स आते थे। ये मैंने 1-1.5 महीने तक ये प्रोसीजर करा। फिर जब इसमें हाथ सेट हो गया तो फिर था अब नया क्या करें। तो फिर देखा ब्रोशर नहीं है, प्रॉपर वेबसाइट्स नहीं है, चलो ये चीज़ बनाते हैं, ये चीज़ बनाई। फिर आया कि डिजिटाइजेशन में जो प्रोसेस होता है, ऑटोमेशन का प्रोसेस, मैंने उस चीज़ पे कोर्स किया। सी एवरीथिंग विच एवर आई डिड वॉज ना, मैं हमेशा कोई ना कोई कोर्स कर रही थी। लाइक डिजिटाइजेशन का आई वॉज डूइंग कोर्स विद IIM नागपुर। सो उसने मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन करा। पहले मुझे लगा था जेटरेन लॉजिस्टिक क्यों इंस्टाग्राम में होगा, इट इज तो B2B बिजनेस, बट इट मेक्स सेंस सर, इट मेक्स योर ब्रांड। आपको बिजनेस नहीं मिलता है, बट आई गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ओनली व्हेन आई डिड दैट कोर्स। मेरा लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं था, आई गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग मैंने जब कोर्स किया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेक योर कनेक्शंस इन योर ओन इंडस्ट्री। तो सारी लर्निंग्स जो मैंने अप्लाई करी वो मैंने हमेशा कोई ना कोई कोर्स करके करी। सो इवन व्हेन जब वो वाला कोर्स फिनिश हो गया तो आई गॉट एन ऑटोमेशन कोर्स। ओके, यस, मैं ऑटोमेशन कोर्स करती जा रही थी। वो लोग जो बताते जा रहे थे वो इम्प्लाई करती जा रही थी। एक एक चीज़ जब अप्लाई करते हो थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच आता जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। साथ में साथ क्या होता था सर, जब मैं अपना कॉल करती थी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, तो सी आई वॉज ऑल्सो वेरी न्यू, तो मैं गलतियाँ भी करती थी डेफिनेटली। तो वो समझाते भी थे, कभी आपको रिप्लाई भी नहीं करते थे। अगर मेरी कंपनी उन्होंने रेट नहीं दी तो मैं ही 10 बार कॉल करूँगी, भैया रेट दे दो, भैया रेट दे दो। दे नेवर कॉल मी बैक रेट देने के लिए, कि मैं बोलूँगी ना भैया रेट दे दो। सो वो पेशेंस रखना पड़ा था, क्योंकि दे वर वेरी सीनियर ऑल्सो, जस्ट बिकॉज कि मैं कल एंटर हुई हूँ एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं उन पर वो दबाव नहीं बना सकती थी। आई वॉज, मतलब कभी अब गुस्सा भी आता था, पर मुझे लगता था आएगा एक दिन, शांति से आएगा एक दिन। सो एट टाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि मैंने मीटिंग अरेंज करी है, वो लोग नहीं गए, दे हैव नॉट इन्फॉर्म मी। सो मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। आई एम लाइक पर्सन ऑन वर्ड्स, मतलब कमिट मेरा, आई एम दैट मच इनटू इट। सो लड़ाई भी हुई है कि भाई मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, ये वो। सो आफ्टर पासिंग सर 4-5 years बाद जो बोलते हैं ना कि आपको वो रिस्पेक्ट आप अर्न कर लेते हो, You have to क्योंकि earn आप it. You have to earn it. और उसका मजा ही अलग है। I think जितने भी women transporters से मिला हूँ मैं, they've had their hardships, but gradually they have proven themselves. Exactly. And once they've got there, then it's I think a cakewalk now. पेशेंस रखना पड़ता है सर स्टार्टिंग में, बट होता है यार। But now you're completely settled. नहीं सर, अभी भी इतनी सारी चीजें जो अब पता चलती हैं, क्योंकि सी आई स्टार्टेड विद मार्केटिंग, डिजिटाइजेशन प्रोसेस। तो जब मैं प्रोसेसेस बना रही हूँ, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग्स रख रही हूँ, सॉफ्टवेयर में कैसे काम आते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये भी होता है रिकॉर्डिंग में, अच्छा ये चीज़ भी अपन को करनी है।
मतलब डेली नई चीज़ अभी तक सीख रही हूँ सर, बिकॉज मैं प्रोसेसेस के अंदर जा रही हूँ, उनको सिस्टमैटिक करना है मुझे, उनका एक प्योर बनाना है सब चीज़ का कि हर किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई गेट टू नो अच्छा ये ऐसे होता है, ये चीज़ इसमें यहाँ लैक हो रही है, और बहुत मज़ा आता है उस चीज़ को सिस्टमैटिक करने में, क्योंकि जब फैमिली बिजनेस को एक स्ट्रक्चर मिल रहा है प्रॉपर, आप समझो चीज़ें बस हो रही थी, रोज गाड़ियाँ Correct. लग रही थी, पर कैसे प्रोसीजर, ये यहाँ से जाएगा, ये ऐसे होएगा, फिर ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऑटोमेटेड, आप जो हो यूज़ करो, CRM यूज़ करो, जस्ट डायल वाले से बात करो, सो इन चीज़ों में करके मज़ा आता है। हाँ, आपको लगता है आप एक एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स वी हैवंट steps, रीच्ड इट yes. एग्जैक्टली, बट हल्का हल्का सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में चीज़ हेल्प करती है। एक वेरी बेसिक थिंग से ऑटोमेशन का कोर्स खत्म हुआ, यू नो आई स्टार्टेड विथ ग्रोथ स्कूल, ग्रोथ मैनेजमेंट, उसमें सिर्फ इतना सिखाते हैं सर कि आप जब वेबसाइट बनाते हो या आपके ब्रोशर्स बनाते हो तो कहाँ क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कैसे, इस पर 50% इज़ नॉट माई थिंग, बट 50% क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, मैं इन हाउस भी नहीं बनवाती, मैं थर्ड पार्टी करवाती हूँ, बट मुझे पता होना चाहिए गाइड करने के लिए कि भाई ऐसे Content बनाना क्या है, है, तुझे ये right? कलर करना है, ये चीज़ नहीं डालनी है, ऐसे डालना है। मुझे लीड्स भी नहीं आती सर इनसे, बट धीरे धीरे सही चीज़ें होती हैं। दीज आर द वेरी थिंग्स जो एक टाइम बाद रिजल्ट देती हैं, बट डेफिनेटली देती हैं। सो आई एम ऑलवेज ऑन एनी कोर्स, और उसकी लर्निंग्स आई अप्लाई ऑन बिजनेस। We will continue our interaction with Barkha after this very short break. You are watching iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. कभी सोचा अगर किसी दिन सब कुछ रुक गया तो? इन छोटी छोटी खुशियों पे, लाइफ पे ब्रेक लग गया तो? किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी कि सब स्मूथली चलता रहे। कोई ऐसा जो ऐसे स्टीयरिंग थामे हैं कि हम ना रुके। जो वक्त से आगे की सोच रखता हो, नए रास्ते बनाता हो। शुक्र है जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। iShare के साथ रहिए 24/7 कनेक्टेड, ताकि ना आपका बिजनेस रुके, ना लाइफ, नई सोच, नए रास्ते। Welcome back to iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. We are talking today to Barkha Agarwal, Director and Business Development Manager at Jet Trade and Logistics. Barkha, how much has IT actually helped you? Because from what I am understanding is you have invested a lot of time and effort in IT. कितना implement कर सके हो आप कंपनी में? सर मैं IT की वजह से ही सब कर पा रही हूँ। द रीजन बीइंग, सी जो Zoom पे कोर्सेज स्टार्ट हुए, जो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हुए, आई एम एबल टू डू बिकॉज दीज आर ऑनलाइन IT की वजह से। People are accepting online Zoom meetings. That's why I am able to get more clients today. Otherwise एक दिन में एक क्लाइंट या दो क्लाइंट होते। Now Zoom पे you can talk to at least 20 people या 20 transporters. So CRM softwares आप यूज करो customer relationship management के लिए, everywhere it is like IT. You have to come up with that. Right. It is like this.
What about connecting with your drivers? How do you do that? सर मैंने क्या कर रखा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें क्या होता है, जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे इंस्टाग्राम सिखाने हैं, हर चीज़ का सर हिंदी में वीडियो देख के आप ऐसे प्रोफाइल बनाओ, आप ऐसे रील बनाओ, ये रील का न्यू ट्रेंड है, इसमें हैशटैग्स ऐसे लगाओ। नॉट जस्ट दिस, आपके बच्चे हैं तो अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं उनको ऐसे पढ़ाओ। गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं उस लेवल के लिए सर मैं वो बताती हूँ। हाइजीन आपको कैसे रखना चाहिए वो बताती हूँ। किसी दिन मतलब जो मुझे उनके लाइक वीडियो लगता है, जैसे गूगल मैप्स आते हैं तो दे मस्ट नॉट बी यूजिंग गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स में न्यू फीचर्स आते हैं, मतलब आप आजकल ऐसे स्क्रॉल करो ना तो वो आपको पूरा वो भी दिखा। सो एवरीथिंग यू नो विच कैन बी ऑफ द यूज, और जो मेरे आती है सोच के कि यहाँ उनको गूगल मैप बताऊँ, ये चीज़ बताऊँ, आई फॉरवर्ड इट द वीडियोज, उनके वीडियोज फॉरवर्ड करती रहती हूँ उनको एक ग्रुप बना के सबको। और सबको बोलती हूँ अपने फोटोज भेजो, अपने ये करो, मैं आपको ऐसे करूँगी। और मेरा बहुत क्लियर है, अगर आप फ़ोन भी ले रहे हो तो आप एक बार मुझे बताओ, हम लोग कंसल्ट करके गूगल पे आपको देख के बताएंगे कि आपको फिजिकली क्या रेट मिल रहा है, ऑनलाइन क्या रेट मिल रहा है, वील कॉल फॉर यू। सो दीज आर द थिंग्स यू नो जो हम कम्युनिकेट करते रहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए हो हेल्प। जैसे कि AI इतवा ने हेल्प वो करा था हाईवे हीरोज का। तो हमारा ऐसा है कि भैया अगर आप 1 साल तक हमारे पास कंटिन्यूसली आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सो वील गिव यू दैट कार्ड। तो उस कार्ड का कहाँ यूसेज आप कर सकते हो। हमने फिर वो लिया था लॉट्स का, लिया था लॉयर का, तो वो चीज़ पे एक्सप्लेन करना कि ये टैग लगाया है, इसको कैसे यूज करना है आपको। But I mean, do drivers appreciate these efforts? आई डोंट नो, पर चेंज तो आता है सर, चेंज आता है। फर्क दिख रहा है आपको? मतलब हमें भेज रहे हैं सर, वो रील्स बनाते हैं, हमें टैग करते हैं, हमें कोलैबोरेट करते हैं वो लोग। मैं उनसे मांगती हूँ कि जैसे मुझे कुछ ऑडियोज रिकॉर्ड करके आप वीडियोस बना के भेजो और ऑडियोज हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि जैसे दे आर नॉट मतलब वेरी ओपन इन कमिंग फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मैं तो बोलती हूँ कि जैसे जो हम लोग ऑडियोज बनाते हैं, हम लोग इंस्टा बनाते हैं, मैं उनको ऑडियोज बना के भेजती हूँ, लिख के भेजती हूँ हिंदी में कि भैया आप ये रिकॉर्ड करके भेजो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कैमरे के सामने बोलो। मैं उनको और ड्राइवर्स जो इंस्टाग्राम पे फेमस हैं, वो गर्ल्स हो बॉयज हो, कोई अपनी रेसिपी कुकिंग करता है, उनके प्रोफाइल्स भेजती हूँ कि देखो लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, कितने फेमस हो रहे हैं, आप लोग भी ये कर सकते हो, आप लोग ऐसे करो। तो कुछ लोग करते हैं सर, कुछ लोग फिल्टर्स यूज करते हैं, यस दे गेट मोटिवेटेड। बहुत सारे सर मतलब एक्सकवेटर वाले हैं जो इतने फेमस है इंस्टाग्राम में, मतलब यू विल नॉट बिलीव 18,000 20,000 30,000 फॉलोअर्स दे आर हैविंग। सो आई कीप स्क्रॉलिंग कि मैं और उनको कैसे प्रमोट कर सकती हूँ कि सर आपको यहाँ रीच करना है, भैया आपको यहाँ रीच करना है, एवरीथिंग। But have you ever planned to do a truck trip? नो नॉट टिल डेट, क्योंकि हमारे ट्रेलर्स हैं, हमारे ट्रक नहीं है। Tough job. वेरी, कोई माने नहीं माने, वेरी सर। हम लोग तो नॉर्मली कार में ही पागल हो जाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी टफ वेरी टफ। मतलब आई वॉज रियली एस्टॉनिश टू हियर जब हरिंदर ने पहली बार बताया था कि वो गई थी और चाय वालों ने वो अपने ड्राइवर्स के साथ उनको एक रेस्टोरेंट में एंटर नहीं किया था, लोगों ने ह्यूमैनिटी छोड़ दी क्या? मतलब मेरे को ऐसा लगा था। मतलब आई एम सो केयरिंग अबाउट माई स्टाफ। सी आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, जैसे आप क्या होता है कभी भी कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते हो ना तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस आता है, या तो आपकी इंटरनल टीम से आता है या आपके कस्टमर्स के साथ आता है। बट आई एम वेरी प्रोटेक्टिव टू माई एवरी वन, वो ड्राइवर हो वो मतलब मेरे इनको सो। तो जैसे कभी कोई कॉल करता है कि जैसे आज एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक मेल करवाया एवरी 15 डेज में जिसका ड्यू पेमेंट हो जाता है, हर कंपनी को एक वो अमाउंट के साथ ड्यू अमाउंट जाता है। नाउ दैट बंदा इज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। सो व्हाट हैपेंस इज वो हिंदी में जैसे अपन लोग 3 के बाद कॉमा लगाते हैं ना, इंग्लिश उसमें मैच में 2 के बाद कॉमास लगता है, मिलियंस एंड बिलियंस। सो ही यूज्ड टू सेंड द मेल अकॉर्डिंग टू दैट। तो लोग क्या होते हैं 14 देखते हैं, कॉमा देखते हैं तो वो 14 लाख समझ लेते हैं, दे डोंट रीड द होल डिजिट्स। ठीक है, सो आई गॉट मेनी कॉल्स रिगार्डिंग दैट। अरे तुम लोग नशा पत्ता करके काम करते हो क्या? हमारा तो 1,14,000 ही है और तुम लोगों ने 14 लाख लगा रखा है, ये वो। मतलब पीपल मतलब कुछ भी बोल रहे हैं सर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल थिंग। एंड आई न्यू, आई एम वेरी श्योर कि मेरा बंदा वो गलती कर ही नहीं सकता। मैंने उसका मेन बताया, मेरे हस्बैंड को कॉल आया, भाई तू ये देख डिजिट्स, तू देख, मैं मानती हूँ कॉमा गलत थी पर इतना भी गिव हिम अ कॉल कि साले मतलब समझ कि अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। आप पढ़ो तो, बट क्या होता है लोग अपनी गलती नहीं देखेंगे सर, एंड वो हमारे कस्टमर्स हैं हम। बट डेफिनेटली आई मेक श्योर कि माय हस्बैंड कॉल देम एंड टेल कि सर 1400 लिखा है विच इज 1,40,000। हाँ, हम उसमें ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखेंगे अब आप बोलोगे तो, बट हमारे यहाँ की मिस्टेक नहीं है वो। सो दैट यू नो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उनको अभी नहीं रोका तो कल सर दूसरा और अलग गुस्से लेवल पे कॉल आएगा, एंड आई कैन नॉट डू दैट। सेम सर है हुआ था
हमारे एक ड्राइवर्स के साथ, जबकि वो मेरा इन हाउस ड्राइवर भैया नहीं थी। भोपाल से सिलीगुड़ी से ट्रांसफॉर्मर्स गए थे, एक पे 3 ट्रेलर निकले थे, उसमें से 2 एकदम सही थे, एक का उसमें ना ऑयल भर के जाते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि कॉस्टली होते हैं, तो ये लोग जब ऑयल डाल के भेजते हैं तो उसको मेजर करते हैं, और जब डेस्टिनेशन पे जाते हैं तब भी मेजर करते हैं कि इसमें से कम तो नहीं हुआ है ऑयल। अब वो ऑयल ड्रिप होके कम हुआ, और उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे फोटोज वीडियोस भेजे कि आप देख सकते हो इसमें से ये ऑयल निकला है, और बंदे ने निकाला है। वो भैया से मैंने बात करी, भैया ने बोला ऐसा नहीं था, बोले जब इन्होंने लोड करा था तो इन लोगों ने अच्छे से नहीं करा था, मैंने इनको बोला भी था शाम को मतलब ये सही करो, उन्होंने कुछ करा था और फिर मैंने नहीं लिया है। बट उसमें फोटोज और वीडियोस में जो दिख रहा था ना सर, ऐसा लग रहा था कि किसी ने निकाला है वो सब कुछ भी इसमें चेक नहीं कर सकते। तो आई डिडंट न्यू, देखिए वो मेरा इन हाउस ड्राइवर नहीं था, बट मेरे को उस बंदे ने बताया सर क्या किया, वो सो श्योर अबाउट इट, उसने टॉप मैनेजमेंट में जहाँ से उसने लोड किया था उस बंदे को कॉल किया, उसको पूरी हिस्ट्री बताई सर कि सर ये देखो यहाँ पे ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था, ये चीज़ चेंज करी थी। उस बंदे ने उसको बहुत पॉजिटिवली लेके शाम तक सर इंक्वायरी करा, और उस बंदे का मेरे पास ओनर के पास मेरा फ़ोन आया कि सर मैम हमारे पास जितना भी ऑयल बचा है ना वो ड्राइवर भैया की समझदारी से बचा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ लोड करा था उसने तो पूरा खुला ही लोड करा था, तो वो तो इतना बचता ही नहीं, इस बंदे ने फिर भी रात को उसको और टाइट करवा के करा था। एंड आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद ड्राइवर, जो मैं ड्राइवर की वीडियोस वगैरह भेजती हूँ, एडेड इन दैट ग्रुप, वो अपने बच्चे से बात कराते हैं, अब मतलब इसके लिए जॉब का कुछ बताओगे वो, एंड आई रिवॉर्डेड हिम दैट थिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। बंदे ने कॉल किया डायरेक्टली ओनर को एंड बताया पूरा एक्सप्लेन, सो मतलब लोग बुरे नहीं है सर। पर हैविंग कम सो फार, और क्या बचता है अभी टू अचीव, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सर बहुत कम लेडीज हैं, सी मेरा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से वो नहीं है, मेरी सिर्फ इतनी सबसे रिक्वेस्ट है, फैमिली बिजनेस है, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी पोती हो, आपकी नाती हो, आप उसको फैमिली बिजनेस का पार्ट बनाओ। बिकॉज अगर किसी का सर कोई नेगेटिव पार्ट होता है या किसी का कोई वीकनेस होता है, तो किसी ना किसी और फैमिली मेम्बर का वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, और बिजनेस में सर हर चीज़ पॉजिटिव चाहिए, हम एक भी नेगेटिव या स्लो डाउन पॉइंट नहीं देखते, उस बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होता है। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम द बिजनेस, एंड आई डोंट नो इफ आई हैव कंट्रीब्यूटेड और नॉट, बट आई एम श्योर यू विल फील जब वो बंदे को आप चांस दोगे। तो फैमिली बिजनेस में मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी पोती हो, आपको बनाना ही चाहिए। यू विल लव इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट एनीवेयर। हमारी जनरेशन बहुत संभाल के सर अपनी फ्रीडम को यूज़ करती थी। आई डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, बट नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो वी आर रेजिंग इट इक्वली। माई फादर नेवर सेड आई हैड 2 ब्रदर्स कि मैंने मेरी बेटी को बेटों की तरह पाला, नहीं, मैंने मेरे 3 बच्चों को इक्वली बांटा। अगर 5 बजे मेरे भाई बैडमिंटन खेलने जाते तो मैं भी जाते थे, मेरे भाइयों ने अगर कराटे सीखे हैं तो मैंने भी सीखे हैं, अगर मेरे भाइयों को गाड़ी मिली है तो मुझे भी मिली है। आई एम सो थैंकफुल टू माई गॉड। सर मुझे आज लाइफ में किसी से डर लगता ही नहीं, मैंने कभी लड़का लड़की का डिफरेंस सीखा ही नहीं। आपको पता है, मतलब कभी मेरे मम्मी ने मतलब याद भी नहीं होगा उनको, मुझे चद्दर खड़ी करने की कहती थी ना, पहले भाइयों से करवा उसके बाद करूँ, बिकॉज इक्वली। और उन्होंने कभी वो नहीं कहा कि नहीं तू ही करेगी, क्योंकि हमें इक्वली, मतलब मेरे बाबा 90 years प्लस थे, ही वो डाइड मतलब 100 years, ही ऑल्सो नेवर डिड इट कि ये तू नहीं कर सकता। वो कैलकुलेशन अगर मेरे भाइयों से कराते थे तो मुझसे भी कराते थे, और एक गलती होती थी तो 100 गालियां देते थे, उनको भी देते थे और मुझको भी, बिकॉज ही ट्रीटेड इक्वली कि भाई तुम बनी की औलाद हो, तुम गलती कर ही नहीं सकते हो। ये चीज मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा मैथ्स में तो मतलब नाउ आप मतलब बिना कैलकुलेटर के, एंड इवन आई टीच दैट टू माय किड्स कि भाई मतलब अगर उन्हें स्टूपिड क्वेश्चन पूछ ले, तुम कैसे, मतलब तुम मेरे बच्चे हो यार, तुम स्टूपिड क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते हो वाली चीज है। लेकिन बरका, टॉकिंग ऑफ कराटे, आप जैसे सीखे हो, वो ड्राइवर्स के साथ काम आता है? जरूरत नहीं पड़ी उसकी? हाँ नहीं, नेवर सर। मैं नहीं बोलूंगी कि मैं डेली ओला से भी ट्रैवल करती हूँ, इन हाउस ड्राइवर्स भी हैं, ट्रक ड्राइवर नहीं सर, क्यों? फैमिली लेके बैठे हैं, इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग से नेवर। You recently went to the Eicher plant. Yes. How was that experience? क्या सीखने को मिला? सर एक कम्युनिटी, आजकल एक कम्युनिटी बनी, लगा हम अकेले नहीं हैं। अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो सी सर, मेंस आर इनटू ऑपरेशंस, वो लोग एसोसिएशंस में जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट मीटिंग होती है, डेली लोग शाम को बैठ रहे हैं, बट यहाँ पे कोई गर्ल नहीं है जिसके साथ मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में जाके बैठूँ कि यार तुमने क्या नया करा।
क्या और कर सकते हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू पीपल सर. एट टाइम्स आप फंस जाते हो चीज़ों में. बिलीव मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद HRs ऑल्सो. So for that, see, I don't have that much community. Of course, Aisha gave me that opportunity कि मैं और देख सकूँ. कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है सर कि ये कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं. इन्होंने ये किया तो अगर हमें यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो आई नो whom to talk to. तो आयशर इज द फर्स्ट. और सर रिस्पेक्ट जो उन्होंने दी आयशर पीपल ने, मतलब that yes we are doing good, it keeps helps us in motivating in doing more good in your own company, more good for the organization and more good for our industry. सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री के लिए हम और क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट. अभिषेक सर टू गुड. मैसेज करा सर कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब 15 मिनट्स तो इज द मैक्स जब आपको रिप्लाई आएगा. दिस इज द मैक्सिमम. कम व्हाट में प्रॉब्लम, ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर. आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम लेके जाओ, सर ये चीज़ आ रही है, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, बीट ऑपरेशनल, बीट इन, ही इज ऑलवेज देयर. सो यू इन दीज प्लेटफॉर्म्स यू गेट टू मीट पीपल who are there, you get to meet people to learn from it, you get to people whom you can associate with. Very helpful. क्योंकि इससे पहले तो सर कोई, मतलब अभी भी लोकली कोई नहीं है ना, बट एटलीस्ट आयशा से हमारे ग्रुप बना, हमें पता चला 10 और लोग हैं, उन्होंने कैसे करा, वो कैसे करते हैं. सो थैंक्स, मतलब अ लॉट ऑफ थैंक्स टू आयशा फॉर डूइंग दैट. एंड सबसे बड़ी बात, ट्रक कैसे बनते हैं, क्या मॉडर्न फैसिलिटी है, AI कैसे आई सर, और हम 10 साल बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो उस एक्सपेक्ट करने से जो चीज़ चेंज हो रही है, हमें कितना चेंज होना पड़ेगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए. बिकॉज चीज़ें तो होंगी और हो रही हैं, बट हमें कितनी स्पीड से अपने आप को भी ग्रूम करना है वहाँ पहुँचने के लिए. दैट रियली हेल्प्स अस टू नो दैट. Vivarka, where do you see yourself 5 years from now? More systematic in my organization. दूसरा, like whatever, whenever I face ना सर, जैसे बोलते हैं ना, books are the answers to every question. Books are really the answers to every question. कहीं पे भी आप डील करो, आप कस्टमर से डील कर रहे हो चाहे एम्प्लॉय से, यू नीड ह्यूमन मैनेजमेंट. बहुत बार ऐसा होता है कि आप बोलना चाहते हैं, चीज़ चुप हो जाते हैं, बीट एम्प्लॉय, बीट कस्टमर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड. बट किस तरीके से, किस मैनर से. सो अ बुक हेल्प्स मी अ लॉट. यू नो, मेरे को किसी पे कहीं पे भी फंसती हूँ ना, उस जोनर की बुक उठाती हूँ. टीम मैनेजमेंट की फंस रही हूँ तो टीम मैनेजमेंट में उठाऊँ. You like reading? मार्केटिंग के लिए I like reading, but you can say reading is the only option which will give me the result also. And मतलब see, trans topic has see, I am not into operations. I am recently come up with. मैं कैसे जानूँ मेरी इंडस्ट्री में कौन है? There your magazines help us a lot, at least to me sir. कौन इंडस्ट्री में है, ये कंपनी में है तो कौन बंदा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, योर इंटरव्यूज़, योर मैगजीन्स, डेली का क्या अपडेट है, किसने नया वेयर हाउस बनाया, किसने ये किया. रियली हेल्प्स अस आउट अ लॉट यार. सर हम एक कॉर्नर में बैठ के कैसे, न्यूज़ पे नहीं आती हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का कोई अलग से चैनल नहीं है जिसपे ये न्यूज़ आ रही. योर मैगजीन्स लाइक ट्रांस टॉपिक्स, मैगजीन्स लाइक मोटर मैगजीन, then CVC magazines, these magazines helps us a lot in updating ourselves, in knowing what is going on in our industry, and really helps कि अगर मुझे यहाँ देखना है तो मेरे को इससे कनेक्ट करना है. So you guys are doing a wonderful job. मतलब you cannot imagine सर, जो नया बंदा आता है वो तो अनजान है ना सबसे. भले हमारी कंपनी 50 साल पुरानी है, लोग 50, मैं तो नहीं हूँ ना कंपनी में, मैं कैसे जानूँ पुरानी कंपनीज कौन है और पुराने लोग कौन है, क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं. कोई फीमेल को लाया, फीमेल को लाने से पहले उसने क्या क्या, BR लॉजिस्टिक ने क्या क्या तैयारियाँ करी हैं, एनी कंपनी. सो दीज मैगजीन्स रियली हेल्प्स अस अ लॉट. यू हैव टू डू इट, एंड व्हेन यू कीप डेवलपिंग इट गेट्स इनटू योर रूटीन्स. सो यू हैव टू मेक इट अ हैबिट टू ग्रो. यू हैव टू रीड, मतलब इट इज कंपल्सरी, कम व्हाट में. So people are of this age. Tesla के जो sir हैं, he cannot read. So there is one tutor who reads and who explains him the gist of every book. So it is so mandatory to know कि books, मतलब the world is flat. सर मैंने पढ़ा था जब मैं कॉलेज MBA में थी, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता था वर्ल्ड फ्लैट हो सकता है. But the world is flat after 10 years only. So बोलते हैं ना, 100 जो पहले 50 साल में होता था वो अब 10 साल में हो रहा है. Absolutely. Things are क्या changing होगा fast. एग्जैक्टली, तो क्या होगा मुझे बुक्स बताती हैं, एंड दैट रियली हेल्प्स. हर क्वेश्चन का जवाब बुक है सर, अगर आप उसमें पढ़ रहे हो हर क्वेश्चन का जवाब बुक. फॉर मी एटलीस्ट, HR को कुछ एम्प्लॉयज़ ने गलती कर दी, कैसे हैंडल करूँ, बताऊँ क्या, क्योंकि सर मैं नहीं चाहती कि एम्प्लॉयज़ मेरे से रेस्ट्रिक्ट हो. मैं उनको क्लियर कट इतना भी देती हूँ कि भैया
सी अगर आप जॉब कर रहे हो अर्निंग के लिए करो, बट मैं आपको उतनी वो देती हूँ कि आपको लग रहा है मैम ये डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये डिपार्टमेंट स्विच करके ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी और मैं 1 महीने यहाँ ट्राई देती हूँ, आई एम ओपन टू दैट। बट आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए, इंसान को इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए कि सुबह 5 बजे उठ के उसमें वो एनर्जी हो कि भाई आज क्या 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 करना है। अगर वो एनर्जी नहीं है ना, मतलब आप तो सिर्फ जी रहे हो, जीने के लिए काम नहीं करना है। क्योंकि मैं दे रही हूँ ना, मैं यंग हूँ, मैं आपको वो चीज़ दे रही हूँ। अगर आपको मेरा भी नहीं करना ना, आपको कोई IT फील्ड में, आप मुझे बोलो, आई हैव कॉन्टैक्ट्स, मैं उतना आपको करके दूंगी। You should actually enjoy what you are doing. एग्जैक्टली तो एटलीस्ट मैं वो अपने चाहे ड्राइवर्स हो, इन सबको वो देना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैं उनको इंस्टाग्राम वगैरह पे इसलिए प्रमोट करती हूँ क्योंकि उससे मजा आएगा। आप समझ रहे हो, वो काम कर रहे हैं, वो उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे को मेरी कंपनी दिखानी है, नहीं, देयर इज नो, मतलब ये रीजन नहीं है। Although your daughter is very young now, going forward, will you encourage her to join the business? सर मेरे बेटा बेटी के आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख सकते हैं। शी इज नॉट इवन 5, 1 इज नॉट इवन 10। माई किड्स नो, मेरी दीदी के बच्चों को पता है, मेरे फ्रेंड्स के बच्चों को पता है। मतलब think trailer, think jet train logistic, they'll say everything, what we do, what we don't do. See, when a woman does, when a mother does, they keep me, you know, they keep hearing this, what I'm talking. You can ask them here right away, what is the business, who all are there in a business, क्या हम काम करते हैं, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं। My son has jet train logistic, you know, he is so passionate कि मुझे jet train logistic की t-shirt चाहिए। He makes videos on that कि we do this, we are a 50-year-old company. He enjoys it and he keeps asking me question, हम ऐसे कैसे करते हैं, हम ये क्या करते हैं। I don't have well know, but मेरा काम है सर उनको बताना, he is interested in knowing it। वो काम करें, well and good। हमारा कहीं इससे लिंक नहीं है कि हम बिजनेस इसलिए बढ़ा रहे हैं। बिजनेस तो सर आजकल ऑटोमेट मोड पे भी CEO, हमें उस लेवल पे यूज़ करना है। आपने जो पूछा ना 5 साल में, सर 5 साल में तो पता नहीं, पर 10 साल में उस लेवल पे रीच करना है कि मेरी कंपनी में हम फैमिली बिजनेस के अलग हटके हमारा एक CEO हो जो उसको बाहर का बंदा उस चीज़ को संभाले। बिकॉज वी हैव टू थिंक मोर न्यू, व्हाट मोर कैन वी डू। सो टू गेट अवे इसीलिए सिस्टमैटिक करवा रहे हैं सर, सो दैट एक प्रोसेस से चलता है चीज़ें। Well, friends, that was our interaction with Barkha, a mother of 2 who enjoys her work, is passionate about it, and has the full support of her husband. We really hope that many more women come forward to join this industry. We have featured many women in the series so far, and each one of them would be willing to help any woman who needs guidance or any kind of assistance. So all the women out there sitting on the fence, don't hesitate to reach out. You have been watching Aishar Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. We will be back again next week. So until then, stay safe and drive safe. Jai Hind.